کلام میں لکھا ہے کہ ایمان کیسے بڑھتا جی؟ سننے سے، اور سننا کس سے؟ مسیح کے کلام سے۔ جب مسیح کے کلام سے ہم سنیں گے، ہم اس پر غور کریں گے، تو کلام ہماری زندگی میں کیا کرے گا جی؟ کام کرے گا۔ اگر امیجن کریں کہ کوئی آپ کا بھائی یا بڑا آپ سے بات کر رہا ہو، آپ اس کی بات غور سے نہ سنیں تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ برا مناتے نا آپ ہی۔ سو خدا کا کلام ہے، جب ہم غور نہیں کرتے اس پر تو میرے جی تو خدا اس سے خوش نہیں ہوتا۔ کلام میں لکھا جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ کیا دیکھے گا جی؟ بھلائی کو دیکھے گا، وہ بلیس ہوگا، وہ برکت پائے گا۔ جیسا کہ میں نے اعمال کی کتاب میں کئی بار آپ کو یہ واقعہ سنایا کہ لکھا کہ لسطرا کے اندر پالوس رسول جو ہے وہ کلام پیش کر رہا ہے جی، کلام کی باتیں کر رہا ہے۔ وہاں پر ایک شخص نیچے بیٹھا ہے، لکھا کہ وہ جنم کا کیا ہے جی؟ لنگڑا ہے، لچار ہے، کبھی نہیں چلا۔ اور اس شخص کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غور سے پالوس کی باتیں یعنی کلام کی باتیں وہ سن رہا ہے، غور سے اپنا دھیان اس سے نہیں ہٹا رہا۔ کلام کی جو باتیں ہیں، کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، کلام کے اندر قوت پائی جاتی ہے۔ جب اس نے کلام کو غور سے سنا تو کلام اس کی زندگی کے اندر آیا اور اس کے اندر قوت آنا شروع ہوئی۔ تو پالوس نے دیکھا کہ اس کے اندر ابھی شفا پانے کے لائق ایمان ہو گیا، پیدا ہو گیا ہے۔ تو کیا کہا اس نے؟ اٹھا چل پھر۔ اور وہ شخص لکھا کہ اسی وقت وہاں پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو میرے سے کلام آپ کی کمزوریوں کو آپ کی زندگی سے دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کلام کو اپنے اندر آنے دیں۔ کلام جب آپ کی زندگی میں آئے گا تو آپ کی زندگی سے کمزوریاں، بیماریاں، مشکلیں، آزمائشیں، پریشانیاں جاتی رہیں گی۔ کلام کو اپنے اندر میرے جو آنے نے اپنے اندر رکھے کلام کو۔ اس لیے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو کہاں رکھ لیا جی؟ اپنے دل میں رکھ لیا۔ وہ کہتا ہے میں نے خدا کے کلام کو سجا کر میں نے کہیں اور جگہ نہیں رکھا بلکہ اپنے دل کے اندر رکھا ہے، تاکہ خدا تیرے خلاف ہونا۔ جب دل میں کلام ہوگا تو منہ سے غلط بات بھی نہیں نکلے گی۔ جب دل میں کلام ہوگا تو سوچیں بھی غلط سائڈ پر نہیں جائے گی۔ جب دل میں کلام ہوگا تو آنکھیں جو ہے وہ بھی غلط کسی پر نہیں اٹھے گی۔ تو کلام کو میرے چیزوں غور سے سنیں تو کلام آپ کی زندگیوں میں جب کام کرے گا تو آپ اس سے برکت پائیں گے۔ میرے ساتھ دیکھیں گلتیوں کی کلیسیا کے نام پر اس رسول کا خط اور اس کا 4واں باب، گلتیوں 4 باب جن کے پاس خدا کا کلام ہے میرے ساتھ دیکھیں، اور اس کی 4 آیت، گلتیوں 4:4۔ اس سے پہلے بھی آپ نے یہ کلام سنا ہے، یاد ہے کسی کو؟ گلتیوں 4:4 پیارے بھائی پاسٹر میتھیو صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس کلام کو بیان کیا تھا سنڈے کو۔ انہوں نے بہت ہی وہ ٹاپک جو ہے وہ انہوں نے بتا کر پیش کیا۔ ہم سب نے اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت پائی۔ لیکن آج ہم اس کلام میں سے کچھ سیکھتے ہیں جی۔ میں آپ کو 4 باب اس کی 4 ہے، لیکن جب کیا ہوگا جی؟ وقت پورا ہو گیا تو کیا ہوا جی؟ خدا نے اپنے بیٹے کو آسمان سے اس دنیا میں کیا ہوا جب وقت کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا۔ میرے عزیزو آدم نے جب گناہ کیا تو خدا نے آدم سے اور ابلیس کو جب سزائیں سنائی تو خدا نے کیا کہا جی عورت سے کہ میں تیری نسل کے درمیان اور اس کے درمیان کیا ڈالوں گا جی؟ دامن ڈالوں گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا، وہ تیرے سر کو کیا کرے گا جی؟ کچلے گا۔ اور میرے جیتو خدا نے یسوع مسیح کو آدم کے گناہ کرنے سے پہلے نہیں اس دنیا میں بھیجا، نہ آدم کے گناہ کرنے کے فوراً بعد
यीशु मसीह को खुदा ने जमीन पर भेजा और पौलुस रसूल कहता है कि जब वक्त पूरा हो गया, खुदा जो है मेरे अजीजो हर एक काम जो है कैसे करता है जी? वक्त पर करता है। कलाम में लिखा कि हर एक चीज का खुदा ने वक्त जो है वो मुकर्रर किया हुआ है। और मेरे अजीजो जब आदम ने गुनाह किया उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ने क्या भेजे जी? वहां पर नबी भेजे, खुदा ने रसूल भेजे, खुदा ने बड़े बड़े लोग भेजे जो खुदा की तरफ लोगों को खुदा की खबर लोगों को देते रहे ताकि लोग जो है वो गुनाह से फिर जाए। लेकिन मेरे जो मसीह का जो वक्त है अभी पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए रसूल पौलुस कहता है कि लेकिन जब वक्त पूरा हुआ तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो किससे पैदा हुआ जी? औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। मसीह की पैदाइश कैसे हुई जी? कैसे हुई मसीह की पैदाइश? औरत से पैदा हुआ जी। किससे पैदा हुआ? औरत से पैदा हुआ। कलाम में लिखा है कि 6वें महीने जबराइल फरिश्ता मुकद्दस मरियम के पास आया और मुकद्दस मरियम को आकर उसने क्या दी जी? खुशखबरी सुनाई दी, एक पैगाम दिया। और वो खुशखबरी क्या थी? कि मसीह की पैदाइश के बारे में। और मुकद्दस मरियम जो है जब उसने ये पैगाम सुना तो वो घबरा गई, वो डर गई और वो कहती है कि ये कैसा सलाम है, ये कैसा पैगाम है, ये क्यों कर हो सकता है? मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती। और मेरे से तो उससे पहले हम देखते हैं कि बाग अदन के अंदर खुदा ने इस बात को कर दिया था कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान क्या डालूंगा जी? डालूंगा। इसीलिए खुदा को पता था कि मसीह को कब इस दुनिया में भेजना है, तो मसीह का कब वो वक्त होगा जब मसीह को मैंने इस दुनिया में भेजना है, जब गुनाह का उस मारूसी गुनाह का खात्मा करना है। तो मेरे चीजों पौलुस कहता है, इस बात की वजाहत करता है कि जब वक्त पूरा हो गया। खुदा अपने वादा में कभी देर नहीं करता। जैसी देर बाद लोग समझते हैं, खुदा हर एक काम अपने ठीक वक्त पर करता है। आज अगर हम खुदा की बनाई हुई जो चीज़ें हैं, अगर हम सूरज पर निगाह करें, सितारों पर निगाह करें और जो चांद पर निगाह करें, हर एक जो चीज़ है अपने वक्त पर निकलती है और अपने वक्त पर वो ग्रूप हो जाता है सूरज। तो खुदा की हजूरी में हर काम का एक क्या है जी? खुदा ने वक्त लगाया हुआ है। और मैं जो आदम के गुनाह करने के हजारों साल बाद हम देखते हैं कि खुदा ने क्या किया जी? मंसूबा बनाया कि वो गुनाह मारूसी गुनाह जो नस्ल का नस्ल चलता आ रहा है, खुदा ने कहा कि इस गुनाह का क्या होना चाहिए जी? खात्मा होना चाहिए। उस गुनाह को खत्म करने के लिए कोई इंसान उस गुनाह को खत्म नहीं कर सकता था। खुदा ने इसलिए अपने बेटे को, मसीह को इस दुनिया में भेजा। और लिखा कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने इस बेटे को इस जमीन पर भेजा जो किससे पैदा हुआ जी? औरत से पैदा हुआ जी। खुदा ने आदम को मिट्टी से बनाया, हवा को हम देखते हैं कि आदम में से निकाला, उसके बाद मर्द और औरत के मिलाप से जो बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन ये पैदाश हम देखते हैं कि औरत से जो पैदा हुए। मेरे साथ देखें लूका कलीम की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका पहला बाब, उसकी 26वीं आयत। 6वें महीने में जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और जब फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर क्या हुआ है जी? फजल हुआ है, खुदा तेरे साथ है। सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदा तेरे साथ है। यानी तू जो है
खुदा के मनसूबा के अंदर है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्तों से कहा कि ऐ मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे क्या होगा जी, बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब उससे कहा, अब मरियम ने सवाल किया है जी। फरिश्ता ने कहा कि मुझ पर फजल हुआ है, और मरियम ने वहां पर सवाल कर दिया है ये क्यों कर होगा, मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ, मैं तो किसी मर्द से वाकिफ नहीं हूँ, ये क्यों कर होगा। और यहाँ पर फरिश्ता जो है उसे क्या जवाब देता है जी। और फरिश्ता ने जवाब उससे कहा कि रूह कुदस तुझ पर क्या होगा, नाज़िल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा, हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम से पैदा हुए, और की नस्ल से पैदा हुए, और उनको उसकी कुदरत के वसीला से पैदा हुए। खुदा की रूह जो है वो मुकद्दसा मरियम पर आ ठहरी, और उसके वसीले से हम देखते हैं कि वो हामला हुई, और लिखा है कि वो खुदा की रूह उस पर साया किया, और वो हामला हुई, और खुदा की रूह तेरे बेटा होगा, तो उसका क्या नाम रखना जी, यीशु नाम का मतलब क्या जी, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और इससे पहले कितने नबी आए, कितने लोग बड़े बड़े सूरमा आए, किसी नाम का ये मतलब नहीं कहा गया, कोई गुनाहों से निजात नहीं दे सका। वो सब इस बात की तालीम देते रहे कि शरीयत पर अमल करो, गुनाह न करो, झूठ न बोलो। मूसा को खुदा ने 10 हुक्म दिए, और उस हुक्म में क्या लिखा था, तू खून न करना, तू चोरी न करना, तू ज़िना न करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देना। और हम देखते हैं 10 हुक्म खुदा ने मूसा को दिए, लेकिन गुनाह माफ करने का इख्तियार हम देखते हैं कि मसीह के पास है। और लिखा गया वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा जी, निजात देगा, छुड़ाएगा, उनको बाहर निकालेगा। और वो मौरूसी गुनाह जो आदम से लेकर अब तक नस्ल चलता आ रहा है, उस गुनाह का खात्मा कौन करेगा जी, मसीह करेगा, मसीह करेगा। और हम देखते हैं कि जब ये हो गया, उसके बाद हम देखते हैं कि यूसुफ को जब ये पता चला, तो यूसुफ को भी खुदा का फरिश्ता ख्वाब में दिखाई देता है। कलाम में लिखा कि यूसुफ रास्तबाज था। क्या था यूसुफ? रास्तबाज था। मरियम जो थी वो मुकद्दसा थी, वो पाक थी, गुनाह से नावाकिफ थी, और वो जो यूसुफ था वो रास्तबाज था। इसलिए यूसुफ जो है लिखा है कलाम में कि वो मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता, चुपके से कब्र छोड़ दूंगा। लेकिन खुदा का प्लान हम देखते हैं कैसा है कि खुदा का फरिश्ता जो कैसा मरियम के पास गया, वो यूसुफ के पास भी जाता है, और यूसुफ को भी क्या कहता है जी कि तू अपनी मंगेतर, अपनी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना हटाना। जो कुछ उसके पेट के अंदर है वो उसकी कुदरत से है, और तू उसके बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा जी, निजात देगा। निजात जो है मेरे चीज़ों यीशु के वसीला से है। और उसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाए। ये पहली इसमें नवीस थी सूर्य के हाकम कुरैनियस के अहद में हुई, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो यहूदा में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके
वज़े हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ। उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके वास्ते सराय में जगह। सराय का मतलब क्या है जी? पता है जी सराय का मतलब क्या है? सराय का मतलब पता किसी को क्या है? सराय का मतलब किसी हो आज करके हम देखो होटल या जो मुसाफिर यहाँ पर रहते थे वो जगह पर उनकी जगह ना थी, सराय में जगह ना मिली उन्हें। जहाँ पर मुसाफिर लोग रुकते हैं वहाँ उनको जगह ना मिली, वहाँ उनको जगह ना मिली। और उसके बाद क्या हुआ जी? जहाँ पर जानवर बांधे जाते हैं, जहाँ पर चरनी को हम देखते हैं कि चरनी के अंदर हम देखते हैं चरनी के अंदर मसीह की पैदाइश हुई। लिखा है कि उसके बाद हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह। चरनी में रखा जी, जहाँ पर जानवर जो है वो चारा खाते हैं, जहाँ पर जानवर खाना खाते हैं, खुरली पंजाबी कहते हैं, खुरली में उसे रखा गया कपड़े में लपेट कर, क्योंकि सराय में जहाँ पर रहना चाहिए था तो रहने की जगह थी, वहाँ पर उन्हें जगह ना मिली। उससे में ये जाहिर होता है चरनी में यसुस मसीह की पैदाइश क्यों हुई जी? बहुत सारे खादम, बहुत सारे आलम इस बात की वजाहत करते हैं कि चरनी जो है वो हलीमी और मस्कीनी और गुर्बत को जाहिर करती है, और यसुस मसीह बादशाहों का बादशाह उस चरनी के अंदर पैदा हुआ। और जो हम देखते हैं कि बड़े बड़े बादशाह जो घमंड से, तकब्बर से, गुरूर से बड़े हुए बादशाह हैं, उनको एक सबक दिया गया जी कि ये हकीकी बादशाह जो है इसकी पैदाइश कैसे हुई जी। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हुआ जी। और उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर गल्ला की निगरानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चिकन चमकार वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा कि डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं, जो किन के लिए है जी? सारी उम्मत के वास्ते है जी, तुम सब के लिए नहीं है जी, बल्कि पूरी उम्मत यानी पूरी दुनिया के वास्ते एक बड़ी खुशी की बिशारत है। जो किसने दी जी? फरिश्ते ने दिया था। किनको? चरवाहों को जो मैदान के अंदर अपनी रहकर अपने भेड़ बकरियों की गल्लाबानी कर रहे थे। जब उन्हें खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा हुआ, लेटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और उसके बाद क्या हो? यकायक एक फरिश्ता के साथ, यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमान से की एक ग्रोह खुदा की हमद करती, और ये कहती हुई ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर किसकी तमजीद हो जी? आसमान पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है। यसुस मसीह सुलह का पैगाम लेकर आए। यसुस मसीह क्या पैगाम लेकर आए जी? सुलह का पैगाम लेकर आए। जब आदम ने गुनाह किया और गुनाह हम देखते हैं कि दरमियान में आकर खड़ा हो गया, खुदा एक तरफ और इंसान दूसरी तरफ, और बीच में क्या है जी? गुनाह की दीवार। और इंसान जो है खुदा से दूर होता गया, तो खुदा इंसान से नाराज होता गया, और यहाँ तक खुदा नाराज हुआ कि खुदा ने नूह के दौर में क्या किया जी? खुदा ने इरादा किया कि मैं इस दुनिया को क्या कर दूंगा जी? खत्म कर दूंगा, इन लोगों को खत्म कर दूंगा, ताकि गुनाह का खात्मा हो जाए, ताकि गुनाह जड़ से खत्म हो जाए। खुदा ने नूह के दौर में मंसूबा बनाया कि आसमान से बारिश बरसे और ज़मीन के सोते फूट पड़े, और समुद्र जो है वो भी बेकाबू हो जाए। और लिखा कि 40 दिन 40 रात क्या हुई जी? बारिश हुई। कितने दिन बारिश हुई? 40 दिन 40 रात बारिश हुई। और हम देखते हैं कि खुदा ने नूह के लिए जो एक ही रास्तबाज था, उसको और उसके घराना को खुदा ने हुक्म दिया तुम कश्ती बना लो और इस कश्ती में चढ़ जाओ।
اور 40 دن 40 رات ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے آسمان سے بارش برسائی، زمین سے پانی کے سوتے پھوٹ نکلے، اور خدا لکھا کہ آسمان کی کھڑکیاں کھول دی، اور لکھا کہ دنیا کا جو بڑے سے بڑا اونچا پہاڑ تھا اس سے بھی کتنے ہاتھ اوپر پانی چلے گا جی؟ 40 ہاتھ۔ کتنے ہاتھ جی؟ 40 ہاتھ کا مطلب 60 فٹ، ایک ہاتھ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، یعنی 60 فٹ پانی دنیا کے بڑے سے بڑے پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا جی۔ اور لکھا ہے کہ خدا نے دنیا کو کیا کر دیا جی؟ ختم کر دیا۔ خدا کا خدا نے کا یہ منصوبہ تھا کہ گناہ ختم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی گناہ کیا ہوا جی؟ ختم نہیں ہو جائے گا۔ پھر خدا نے نوح کو برکت دی، وہ آگے بڑھے، اور پھر انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا جی؟ گناہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر خدا نے نبی بھیجے، خدا نے بہت سارے اپنے لوگ بھیجے، لیکن گناہ کا خاتمہ کوئی نہ کر سکا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو اس دنیا میں خدا نے بھیجا، میرے اور آپ کے اور پوری دنیا کے گناہوں کی معافی کے لیے، گناہوں کو سے چھڑانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں خدا نے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور لکھا ہے کہ پھر خدا بات کرو صلح سے، یسوع مسیح زمین پر صلح کا پیغام لے کر آئے جی۔ خدا اور انسان کے درمیان جو دیوار تھی اس کو گرا دیا گیا۔ جب یسوع مسیح کی صلیب پر موت ہوئی تو لکھا کہ جب بلند آواز سے یسوع مسیح نے چلائے، اس کی جان نکلی، تو ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک، خادم بتاتے ہیں کہ وہ ہیکل کا جو پردہ تھا وہ تخس کی کھال کا تھا۔ تخس کہتے ہیں درائی گھوڑے کو، اس کی کھال اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اس کے اندر جلدی کوئی چیز نہیں گھستی۔ تخس کی کھال کا وہ پردہ تھا، اور کوئی اس پردہ کے پار نہیں جا سکتا تھا۔ جس طرح آج ہم خدا کی حضور میں بیٹھے ہیں، اگر اس وقت ہوتے تو ہم خدا کی حضور میں اس طرح بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تخس کی کھال کا وہ پردہ لکھا جو ہیکل میں لگایا گیا تھا، پاک تین مقام کے آگے اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا، اور وہ گناہ کی دیوار اور وہ جدائی کی دیوار جو خدا جو انسان سے دراز ہو چکا تھا، یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ ڈھا دی گئی۔ ہاللیلویہ۔ تو میں یسوع مسیح زمین پر صلح کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور آج ہم نے بھی آپس میں کیا رکھنی ہے جی؟ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم کیا دیتا ہوں جی؟ نیا حکم کیا تھا جی؟ بہت سارے حکم تھے، 10 احکام ہیں، بہت سارے حکم ہیں، لیکن یسوع مسیح نے ایک نیا حکم دے دیا جی۔ وہ مشکل کام نہیں تھا جی۔ کیا کام تھا جی؟ تو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ہے، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ رات کو پاس جی کے سامنے یہ پیغام دیا تھا۔ یسوع مسیح محبت کا پیغام لے کر آئے، یسوع مسیح صلح کا پیغام لے کر آئے۔ فرشتوں نے اس بات کی بشارت دی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی کیا ہے جی؟ صلح۔ اس کے بعد کیا ہوا جی؟ 15ویں آیت میں جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چراہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ، کہاں چلے جی؟ بیت لحم چلے جی۔ وہاں پر کس کی پیدائش ہوئی جی؟ یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی۔ اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خدا نے ہم کو خبر دی ہے، دیکھیں پس انہوں نے کیا کی جی؟ جلدی کی، دیر نہیں لگائی۔ جیسے آج ہم دیر سے چرچ میں آتے ہیں، انہوں نے جلدی کی جی، کیونکہ خبر ہی ایسی تھی، خوشی خبر تھی کہ انہوں نے جلدی کی، اور جا کر ہم دیکھتے ہیں اس جگہ پر وہ پہنچے، اور جا کر اس بچے کو کیا کیا؟ انہوں نے سجدہ کیا جی۔ اور لکھا کہ پاس انہوں نے جلدی کی اور جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا، اور اس بچے کو چرنے میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ جو اس بچے جو بات اس لڑکے کے حق میں کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کی تعجب کیا، مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، اور چرواہے جیسا ان سے کہا جاتا ویسے ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ آج ہم کس طرح کس طور پر خدا کی حضور میں آتے ہیں؟ چرواہوں کا
ये मुकाशवा था, एक विजन था कि हमने उस बच्चे को क्या करना है जी, देखना है। हमने उस बच्चे को जाकर देखना है, हमने उस निजात दहिंदा को जाकर देखना है, हमने जाकर उसकी तमजीद करनी है, हमने उसका नज़ारा करना है। मेरे तो अगर हमारे अंदर आज हम खुदा की हुजूर में आते हैं, तैयार होना अच्छी बात है, हम नए कपड़े पहनते हैं, इसका मतलब हम तैयारी करके आए हैं, हम तैयार होकर आए हैं। किस लिए आए हैं जी? ताकि हम अपने निजात दहिंदा को जाकर देखें, उससे मुलाकात करें, उसे सजदा करें, उसकी तमजीद करें, उसकी हजूरी में झुके। और लिखा है कि वो खुदा की उसे सजदा करके उसकी तमजीद करके वहां से लौट गए। उन्होंने वो खबर इलाकों में जाकर पहुंचवानी शुरू कर दी कि हमने आज मुनज्जी को देखा है, आज उन्होंने फरिश्तों को देखा है। वो खबर जाकर उन्होंने फैलाई और उसके बाद हम देखते हैं जी क्या हुआ जी, वो लौट गए। और उसके बाद हम देखते हैं जी क्या हुआ जी, अगर मरकस में देखें तो वहाँ पर मत्ती में लिखे कि कई मजूसी यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में सुनकर पूरब से चले और कहाँ पहुँचे जी, यरूशलेम में पहुँचे। कई मजूसी, मेरे साथ देखिए मत्ती में दूसरा बाब, पहली आयत से पढ़े कोई भी। क्योंकि पूरब में हम उसका सितारा देखकर उसे सजदा करने आए हैं। वो कहाँ पर आए जी, कहाँ पर आए जी, यरूशलेम में आए। लेकिन यीशु मसीह की पैदाइश कहाँ पर हो जी, बैतलहम में हुई। यरूशलेम और बैतलहम अलग अलग इलाके हैं जी। यीशु मसीह की पैदाइश बैतलहम में हुई और खादम और बहुत सारे आलम बताते हैं कि बैतलहम का इलाका था वो एक पसमानदा इलाका था जी, इतना कोई मशहूर इलाका नहीं था, इतना फेमस इलाका नहीं था। यीशु मसीह की पैदाइश बैतलहम के अंदर हुई जी। और लिखा कि कई मजूसी पूरब से ये कहते हुए, जब हेरोदेस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है जी। ढूंढ रहे हैं बादशाह को। बादशाह, उन्होंने सोचा शायद बादशाह जो है बादशाह के महल में पैदा हुआ होगा। जिस तरह के ताबिश ने बड़ी खूबसूरत बात की कि बादशाहों से जो पैदा होते हैं वो शहजादे पैदा होते हैं, लेकिन उन मजूसियों ने इस बात की गवाही दी कि हकीकी बादशाह, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है जी। उन्होंने वो माहिर फलकियात थे, उन्होंने सितारा देकर उससे हिसाब किताब लगाया कि वाकई यहूदियों का बादशाह वहाँ पर पैदा हुआ है। और लिखा है पूरब में उसका सितारा देकर उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग क्या हो गए जी, घबराहट किस बात की थी। हेरोदेस को घबराहट इस बात की थी कि यहूदियों का बादशाह पैदा हो गया, शायद मेरा तख्त मुझसे चला जाए। और वहां पर हेरोदेस ने क्या चलाकी की जी, सियासत देखते हैं उसकी। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब बुजुर्गों, सब सरदार, काहनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाथ में घर के सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राइल की गल्लाबानी करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उससे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त में साल जो हेरोदेस ने 2 साल और 2 साल से कम बच्चे जो मरवाए थे उसने यहाँ से हिसाब किताब लगाया था जी। मजूसियों से पूछा कि तुमने वो सितारा कब और किस टाइम तुमने देखा है। जब मजूसियों ने बताया कि हमने 2 साल पहले देखा है जी, या पौने 2 साल पहले देखा है जी। और हेरोदेस ने वहाँ पर हिसाब लगाकर बच्चों को कत्ल करवाना शुरू कर दी। सियासत क्या कर रहा है, वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर
उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर होता कि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुआ। देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे, नेविगेशन हम देखते हैं जी कैसा है खुदा का। आज मैं मेरा दोस्त खातम इंडिया में, मेरी उससे बात हो रही थी, वो कहता कि मैंने आज खुदा के नेविगेशन के बारे में बताया कि खुदा का जो नेविगेशन कैसा है जी। आज हम किसी जगह पर पहुंचना होता है, हम क्या लगाते हैं, जीपीएस ऑन करते हैं और वहाँ की लोकेशन ऑन करते हैं और हम उसके पीछे पीछे चले जाते हैं जी। कई बार वो जो जीपीएस हमें गलत राह पर ले जाता है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है तो हमें गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन खुदा का हम देखते हैं कि नेविगेशन कैसा है जी। वो सितारा उनकी रहनुमाई कर रहा है जी, और उनके आगे आगे चल रहा है जी, और उसके पीछे पीछे चल रहे हैं जी। और जहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ठहरे हुए थे वहाँ पर वो चले गए जी। और बादशाह की बात सुनकर रवाना हुआ। देखो जो सितारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, और यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। और उस तारे को देखकर नहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया, और अपने डब्बे खोलकर सोना और नबात और मुल्क उसको नजर किया, और हर जिसके पास फिर ना जाने की हिदायत पाकर ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए, दूसरे मुल्क रवाना हो गए जी। यहाँ पर वो सितारा उस घर के ऊपर जाकर ठहर गया। और बात करने का मतलब ये है कि वो मजूसी कहाँ से चले जी, पूरब से चले, मसीह का वो सितारा देखकर, और वो वहाँ पर पहुँचे हैं जी। और उनका एक ही विजन था, उनका एक ही मुकाशवा था, उनका एक ही ख्याल था कि हमने मसीह को क्या करना है जी, देखना है। और अपने साथ क्या लेकर आए जी, खाली हाथ नहीं आए, तोहफे लेकर आए जी, सोना मुर लुबान लेकर आए हैं जी। और वो उन्होंने अपने डब्बे खोले और मसीह को वो तोहफे क्या किए जी, पेश किए। आज हम क्या लेकर आए जी खुदा की हुजूरी में? खुदा ना हमसे सोना चाहता है, खुदा ना हमसे मुर चाहता है, ना खुदा हमसे लुबान चाहता है। खुदा चाहता है तो हमारी जिंदगी चाहता है जी। खुदा हमारी जिंदगी के अंदर आना चाहता है, खुदा हमारे दिल के अंदर आना चाहता है। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। हम जो बड़े तैयार होकर खुदा की हुजूरी में आए हैं, हम मसीह के लिए, जिसके जन्मदिन को मनाने के लिए। आप किसी उसमें जाते हैं ना, किसी की सालगिरह होती है उसमें जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं नहीं, कुछ ना कुछ हम लेकर जाते हैं, कुछ ना कुछ हमारे हाथ में होता है गिफ्ट उनके लिए। आज अपनी जिंदगी पर सोचें, सोच विचार करें कि मसीह जो आसमान से इस जमीन पर आया मेरे और आपके गुनाहों की माफी के लिए, मेरे और आपके गुनाहों को उठाने के लिए, मेरे और आपके गुनाहों को धोने के लिए, मेरे और इस जहान के गुनाह को उसको खत्म करने के लिए। तो हम मसीह के लिए क्या तोहफा लेकर आए? अपनी जिंदगी पर गौर करें। खुदा खुश होता है इस बात से कि हम अपने घरों को सजाएं, अपने घरों में ट्री लगाएं। ट्री का मतलब क्या है जी? लगाने का मतलब यह है कि इसके ऊपर क्या है जी, ये सजाया हुआ फल ज़ाहिर होते हैं। अगर इसके ऊपर से ये फल उतार दिए जाएं तो क्या ये अच्छा लगेगा जी? क्यों बहनों, अच्छा लगेगा? मेरी तो इसी तरह हमारी जिंदगी अगर बेफल है, हमारी जिंदगी में फल नहीं है, हमारी जिंदगी में मसीह नहीं है, अगर हमारी जिंदगी में खुदा का बेटा नहीं है, तो मैं तो हमारी जिंदगी में क्रिसमस मनाना, नए कपड़े पहना, चरनी को सजाना, स्टार लगाना, क्रिसमस ट्री सजाना, अपने घरों को सजाना, वो सब क्या है जी? बेमानी है। अगर हमने अपनी जिंदगी मसीह को नहीं दी, अगर हमने अपना दिल जो है मसीह को नहीं दिया, वो मजूसी जो है वो पूरब से चले हैं पश्चिम में, और आकर उन्होंने क्या किया जी? मसीह को देखा, दीदार किया मसीह का, उसे सजदा किया, और अपने तोहफे जो अपने पास लेकर आए थे उन्होंने मसीह को क्या कर दिए जी? पेश कर दिए। आज मसीह हमसे कुछ नहीं चाहता,
आज अपनी जिंदगी मसीह को पेश करें। आज उन कामों को अपनी जिंदगी से खत्म करें जो मसीह को पसंद नहीं है जी। आज उन आदतों को अपनी जिंदगी से हमें खत्म करने की जरूरत है जो मसीह को पसंद नहीं है जी। मेरे जी तो खुदा हमसे कुछ नहीं चाहता है, न सोना चाहता है, न हदिये चाहता है, न हमसे खुदा दया चाहता है। खुदा चाहता है कि अपनी जिंदगी हम खुदा को ले, फिर हमारा क्रिसमस जो है मनाना मेरे जी तो पैसे बरकत होगा। नहीं तो हम अगर मसीह के बगैर, मसीह हमारी ज़िंदगी में नहीं है, मसीह को हमने अपना जान में कबूल नहीं किया, अगर हम क्रिसमस मनाते हैं तो हमारा क्रिसमस मनाना जो है मेरे जो बेमानी है, उसका कोई मकसद नहीं है। और लिखा है कलाम में, क्योंकि खुदा का रसूल पौलुस कहता है कि जब वक्त क्या हो गया जी, पूरा हो गया। 6वें महीने जबराइल फरिश्ता जब वक्त पूरा हो गया तो मुकद्दसा मरियम के पास आकर खड़ा हो गया कि तू क्या होगी जी, हामला होगी। खुदा का सीखे इस बात से कि खुदा हर काम अपने वक्त पर करता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि खुदा देर लगा रहा है जी, खुदा देर नहीं लगाता जी। कलाम ने कहा खुदा वक्त पर हर काम करता है जी। उसी के आने का वक्त था और उस वक्त क्या हम देखते हैं कि खुदा ने इसी को दुनिया में भेजा मेरे और आपके गुनाहों की निजात के लिए। हालेलुया। आज जिन लोगों ने मसीह को कबूल नहीं किया, आज जिन लोगों ने अपनी जिंदगी मसीह को नहीं दी, 2024 में दाखिल होने से पहले आपके पास मौका है जी, आपके पास मौका है। बहुत सारे खादिम कहते हैं 2023 में जो क्रिसमस हम मनाते हैं ये इस बात की अलामत है कि हम नए साल में कदम रखने वाले हैं, अपने आप को तैयार करें अगले साल के लिए। तो मेरे चीज़ों अपने आप को तैयार करें, तैयार करें अपने आप को अगले साल में जाने के लिए। और अगले साल में जब हम कदम रखें तो हम मसीह के बगैर ना रखें, मसीह को अपने साथ लेकर जाएंगे अगले साल में। मसीह को अपने साथ साथ रखें, मसीह को अपने साथ साथ जब रखेंगे, मसीह हमारी जिंदगी का सेंटर होना चाहिए जी। कलाम ने कहा जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से जब होगा मैं उनके दरबार में क्या होगा जी, हमारे सेंटर में खुदा मौजूद रहता है। कोई भी काम करे हमारा सेंटर जो है मसीह होना चाहिए जी। उस कश्ती की तरफ देखते हैं कि मसीह जो थे मौजूद थे कश्ती के बीच में। कहाँ थे मसीह? कश्ती के बीच में, उन्होंने बचा लिया। तो हमारी ज़िंदगी में मसीह होंगे तो हमें हर मुश्किल से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से वो बचाने की क्या रखते हैं जी, कुदरत रखते हैं। हालेलुया। आज हमने खुदा के कलाम में से सीखा है कि मेरे चीज़ों, पहला ये सीखा कि खुदा हर काम जो है अपने वक्त पर करता है जी। और दूसरी बात, वो मजूसी जो पूरब से चले मसीह का स्टार देखा और मसीह को उन्होंने देखा जी, वो वापस नहीं लौटे। बादशाह की बात सुनकर वापस भी जा सकते थे, बादशाह की बात सुनकर वो मेरे तो किसी और रास्ते पर जा सकते थे, लेकिन मेरे वो सितारा उनकी क्या करता रहा जी, रहनुमाई करता रहा। और उन्होंने जाकर मसीह को देखा, उसका दीदार किया, उसे सजदा किया। सजदा करने से मुराद कि उसे अपना बादशाह कबूल कर लिया कि वाकई है कि बादशाह क्या है जी, तू ही है, हम तेरे सामने झुकते हैं। क्या हम खुदा के सामने झुकते हैं? क्या हम मसीह के सामने घुटने देकर दुआ करते हैं? नहीं तो आज अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। 2024 चंद दिनों के बाद आने वाला है, उसमें कदम रखने से पहले अपनी ज़िंदगी मसीह को दे दें, जो मेरे और आपके गुनाहों को मुझे और आपके गुनाहों से छुड़ाने के लिए, इस दुनिया के गुनाहों से छुड़ाने के लिए इस ज़मीन पर आए। तो मेरे अपनी ज़िंदगी हमें मसीह को देनी है। आइए आज अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। सबसे सरखुदा की तरफ झुके, सब आंखें बंद हों और अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। क्या मसीह हमारी ज़िंदगी में है? क्या मसीह जिसका जन्मदिन आज हम मना रहे हैं, हमने अपनी ज़िंदगी उसको दी है? क्या हम उसके कहने पर अमल करते हैं? हालेलुया।